اور آج کراس ایگزامینیشن تھی جو نیب کی طرف سے گواہ یہاں پیش کیا گیا، جس نے تمام جو ثبوت ہیں شہباز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات کے، وہ فوٹو کاپی کے اوپر مبنی ہیں۔ کوئی ثبوت سرٹیفائیڈ نہیں ہے، کوئی کاغذ سرٹیفائیڈ نہیں ہے، اور وہ ریکارڈ جس کا الزام ہے وہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے آج کورٹ میں یہ کہا کہ ایک تو جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی بطور وزیر اعلیٰ، ممبر پروونشل اسمبلی، ممبر نیشنل اسمبلی اور بطور وزیر اعلیٰ، 1 روپے کی انٹائٹلمنٹ انہوں نے کلیم نہیں کی۔ لیکن اس کے علاوہ ان ایڈیشن انٹائٹلمنٹ کے علاوہ میڈیکل بلز، سرکاری گاڑیوں کے اندر پیٹرول کنٹریبیوٹ کیا۔ جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ تو وصول کی نہیں، کلیم نہیں کی، لیکن چاہے وہ بیرون ملک دورے ہوں، وہاں کا خرچہ ہو، ٹکٹس کا خرچہ ہو، لاجسٹکس کا خرچہ ہو، اس کے علاوہ یہاں جتنی سرکاری گاڑیاں ان کے استعمال میں تھیں، جو میڈیکل بلز انٹائٹلڈ تھے وہ، اس کے علاوہ جب وہ بیمار ہوئے، جب ان کو کینسر ہوا، وہ سب علاج بھی انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے خود پے کیا۔ تو ایک تو انہوں نے فورگو کیا اپنی انٹائٹلمنٹ کو، ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا سرکاری خزانے میں اپنی طرف سے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ووٹ چور سلیکٹڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف پہ کیس بناتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ میں نے شہباز شریف پہ کیس بنایا، اس کے بعد گرفتار کر کے ڈیورنگ انویسٹیگیشن ریفرنس دائر ہو گیا، ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف کو گرفتار کر دو۔ وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا، ان کی بیک کا، کمر کا، اور ان کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے گورنمنٹ کے ہسپتال میں 11 اور 16 نومبر کو، اور رپورٹ شہباز شریف کو کب دی گئی؟ 12 دسمبر کو۔ وہ بھی کورٹ نے آرڈر کیا، کورٹ نے آرڈر کیا کیونکہ یہ نہیں دے رہے تھے، آرڈر کے باوجود نہیں دی۔ اس کے بعد دوبارہ درخواست ہم نے دی کہ آپ نہیں دے رہے، وہ ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ تھا۔ ان کی میڈیکل رپورٹ، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی پہلے عمران صاحب کے پاس جاتی ہے، عمران صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو ان کی میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ دینی ہے کہ نہیں دینی، کب دینی ہے۔ مہینے کی تاخیر کے بعد کورٹ کے آرڈر کے اوپر ان کو ان کی رپورٹ دی گئی۔ رپورٹ میں جو ویلیوز آئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہباز شریف کو جان بوجھ کر ان کی صحت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میڈیکل رپورٹس میں ان کا ایڈرینل گلینڈ اور ان کی جو باقی ویلیوز ہیں وہ خراب آئیں، جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا گیا، ان کے علاج میں تاخیر کی گئی، ان کو رپورٹ دینے میں 1 مہینے کی تاخیر کی گئی۔ یہ سب کچھ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہوا، اور اب ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اس فاشسٹ حکومت کو، جنہوں نے سفاکیت کی اور چھوٹی ذہنیت اور چھوٹی حرکتوں کی مثال قائم کی ہے۔ ہم نے ان کو ایک درخواست دی ہے کہ فوری طور پر اس میڈیکل رپورٹ کے رزلٹ میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو ان کے ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ہو، لیکن یہ جان بوجھ کر میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دے رہے۔ جو میڈیکل رپورٹ، میڈیکل ٹیسٹ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہوا، گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، جو رپورٹ ٹھیک نہیں آئی وہ جان بوجھ کر نہیں دی جا رہی۔ اور وہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ شہباز شریف کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ شہباز شریف کو عمران صاحب کے حکم پر اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ شہباز شریف 27 ارب کی 26 ارب 27 ارب کی میٹرو بناتا ہے، اور پشاور میں 126 ارب کی میٹرو بنتی ہے۔
मुल्क के अंदर जो चलती भी धक्के से है, चलती भी नहीं है, क्योंकि धक्के की हुकूमत और धक्के की मेट्रो नहीं चल सकती। उसके दूसरी तरफ 126 अरब का बीआरटी पेशावर में डाका, 250 अरब का आटे की मद में डाका, आटे को मार्केट से गायब करते हैं, बहरान डालते हैं। ये हुकूमत नहीं, ये माफिया है। उसके बाद 35 रुपए किलो आटा 90 रुपए किलो आटे में बिकता है। चीनी में 550 अरब का डाका, चीनी को गायब करते हैं, बहरान डालते हैं, उसके बाद इंपोर्ट करते हैं, उस पर सब्सिडी देते हैं। 550 अरब का डाका, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में बेचते हैं। एलएनजी के अंदर खरीदारी में, सिर्फ खरीदारी में 122 अरब का डाका। वो एलएनजी जो $4 पे इनको मिल रही थी, वो एलएनजी $16 पे खरीदी जा रही है। 122 अरब का डाका एलएनजी की मद के अंदर सिर्फ खरीदारी में, और उसके अलावा उसका बहरान पैदा करते हैं। $4 की बजाय $16 में खरीदते हैं, क्योंकि लाडला वजीर जो कि एटीएम है इमरान साहब का, वो अपने वजीर के जो पावर प्लांट्स हैं वो डीजल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूं कि इस वक्त एलएनजी 122 अरब का डाका सिर्फ खरीदारी में $4 से बढ़ाकर $16 में जानबूझकर एलएनजी को खरीदा जा रहा है। फिर उसको फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाया जा रहा है, क्योंकि नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलते हैं। उसकी मद में 20 अरब महाना सरकारी खजाने को नुकसान और आवाम की जेब पर डाका है, और गैस नहीं मिल रही। तो 122 अरब का खरीदारी में डाका, मैं दोबारा बता दूं, और 20 अरब का महाना जो डीजल और फर्नेस ऑयल पर नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, एलएनजी को ताखीर की गई, बहरान पैदा किया गया। ये 122 अरब और 20 अरब महाना इमरान साहब की जेब में जा रहा है। आपने पहले देखा, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, दवाई, गैस, बिजली, इन सब में डाका डालने की वजह शहबाज शरीफ जेल में है। 4 दिन से पीडीएम के जलसे से पहले 2 दिन, अगर जलसा नाकाम होना था, अगर जलसा आपकी नजर से, आपके झूठों ने कहा कि जलसा छोटा था, तो कराए के तर्जुमान और वजीर आजम हलकान क्यों हो गए हैं जलसे के बारे में बातें और ट्वीट कर करके? जलसे से पहले खौफ में मुब्तला, और जो तारीखी जलसा हुआ, जलसे के बाद भी ना आटे की परवाह, ना चीनी की परवाह, ना रोजगार की परवाह, ना मईशत की परवाह, ना एलएनजी की परवाह, ना दवाइयों की परवाह, सिर्फ पीडीएम पीडीएम पीडीएम। क्योंकि पीडीएम की तहरीक अवाम के जेबों पर इस डाके के खिलाफ है। पीडीएम की तहरीक महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, जो इस वक्त मुसल्लत टोला अवाम पे कर रहा है। कश्मीर का सौदा हो गया, सकूते कश्मीर हो गया। आज 16 दिसंबर एपीएस का वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया। हमने अपने बच्चों की शहादतों से, इस मुल्क से दहशतगर्दी, नवाज शरीफ की क़यादत में जब वो वजीर आजम था, मुल्क में कौमी बयानिया बना दहशतगर्दी के खिलाफ। उस वक्त तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर, यही वो बंदा था, यही वो शख्स था जिसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था गले से घसीट दो। उसी शख्स को टेबल पे बिठाया, कौमी बयानिया बनाया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराजे अकीदत पेश करते हैं उन वालदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाकया हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान,
और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा। एक नालायक, नाअहल, चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वजीर आजम और वो वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आज बेशरम जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं, वो मंसूबे पाकिस्तान को तोहफा दिया। सीपैक बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसमें से 550 मेगावाट बिजली, 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। 300 डैम तो तुमने बनाने थे, कोई पूछने वाला है? नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं, तो आज 122 अरब के फेसेस नजर नहीं आ रहे करप्शन के आपको? 20 अरब महाना नुकसान एलएनजी में करप्शन हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही? 250 अरब का डाका आटे में डल गया, आपको नजर नहीं आ रहा? 122 अरब एलएनजी में हो गया, 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नजर नहीं आता। आज मालम जब्बा ताखीर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आजम ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा के कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के खिलाफ साजिश की, इसलिए इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया। मालम जब्बा ताखीर, हेलीकॉप्टर से केस ताखीर, बिलियन ट्री सुनामी ताखीर, बीआरटी पेशावर तारीख। शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पनामा में खामोश हो जाओ, वहां से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की। और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ 1 रुपए की सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द का इल्जाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है। आप जवाब दें, ये चोरी डाका, और इस वक्त जो 20 अरब का महाना डाका डाला जा रहा है, इमरान साहब आप जवाब दें इन अवाम की जेबों पे ये डाका, इस चोरी का जवाब दें। और शहबाज शरीफ की फौरन मेडिकल जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए।